الحسن نحو القصة وقال السلام عليك يا الجداء يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصة؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخلوا معهم تحت القصائم فما كانت الله صوت وعزوا بولد الحسين قد أقبلوا وقال السلام عليك يا أمه. قال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني ثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم جدك أخاك تحت القصائم. فدن الحسين نحو القصائم وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله يتأذن لي أن أكون معكما تحت القصائم. فقال عليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. فدخلوا معهم تحت القصائم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال عليك بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت القصائم. فأقبل علي نحو القصة وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت القصائم. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفة صاحب الغواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت القصائم ثم أعطيت نحو القصة وقلت السلام عليك يا بطاء يا رسول الله. يا بطاء يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت القصائم. قال عليك السلام يا بنتي وبعزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت القصائم. فلما اكتملنا جميعا تحت القصائم أخذ برسول الله بطرف القصائم وأومي بيده اليمين إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأحبتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم محب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتعظني لأحبط الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. على الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجعلكم محبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا عمي والله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلا البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. فقال علي أبي يا رسول الله أخبرني ما علي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي زول الله يحفظنا وفعل شيئتنا ورب الكعبة. فقال نبي صالح يعولي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله الحمام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام ولا طالب حاجة قضي الله حاجته. فقال علي إذا الله يحفظنا صيدنا كذلك شيعتنا فحفظ صيده في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. जब नाम अली मुँह से निकल जाता है, जब नाम अली मुँह से निकल जाता है, गर को गए मुसीबत हो तो टल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदके
सदके हो ए उन्स, क्या नाम गैस नाम के, सदके हो ए उन्स, गिरता हुआ इंसान संभल जाता है। जब नाम अली, नारे सलवात। आगे को आओ, आगे हुस्न की जान हो गया होगा, हुस्न की जान हो गया होगा, ऐन ईमान हो गया होगा, ऐन ईमान हो गया होगा। जब बना होगा वो कदे मौजू, जब बना होगा वो कदे मौजू, साया कुर्बान हो गया होगा, हुस्न की जान। नारे सलवात। सल्लल्लाहु अलैहि सकीना कैद हो कर शाम के, जिंदा में जब आई सकीना कैद हो कर शाम के, जिंदा में जब आई वो बच्ची उस अंधेरे घर की तारीकी से घबराई, मुक़द्दर ने अजब आफत की
पहली रात दिखलाए ज़मीं तो फर्श थी साया फिगर था चरखे में नाए पुपी के साथ रहती थी नमा के पास सोती थी बरगना सर खड़ी जिंदा के दरवाजे पर रोती थी उधर से जो गुजरता था उसे कहती थी सुनता जा मैं बेकस कैद में हूँ एक ये पैगाम है मेरा अगर बाबा मिले तुझको तो ये कहेगी जो कसम खा खा सकीना पर मुसीबत गए खबर लो शगे वाला अगर तुझसे कहे खैमे में सोता छोड़ आया तो तू कहियो दरे जिंदा पर रोता छोड़ आया हूँ सकीना फातिहा चलो हज़रात गिरामी मरसिया के 5 बंद समातों की नज़र करूँगा। आपसे गुजारिश एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन शुहदाए मिल्लत आप हाज़रीन अपने अपने मरहूमीन को भी शामिल फरमा लें। बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन रहबर मुअज़्ज़म और दीगर मराज उज़्ज़ाम बिलखुसूस शहीद सिब्त जाफ़र ज़ैदी इब्न अहमद मियाँ ज़ैदी को शामिल फरमा कर सूरह फातिहा की तिलावत फरमा।
चगलुम जो करबला में बागतर का गो चुका चगलुम जो करबला में बागतर का गो चुका पैवंद बेकसों के तनो सर का गो चुका और फातिहा हुसैन के लश्कर का गो चुका कब्रों पर शोर आले पैगंबर का गो चुका मातम में 3 रोज रहे शोरो शैन से रोए लिपट के मज़ारे हुसैन से रोए लिपट के मज़ारे हुसैन से मिसले चराग गोर गरीब बाबद जला फूलों के बदले कब्रों पलख जिगर चढ़ाए प्यारों की बूंद बाश के सामा जो याद आए बेसाख्ता पुकारे कले जा पकड़ के गाय बेसाख्ता पुकारे कले जा पकड़ के गाय कुनबे के साथ दाखिले करबला हुआ लाया जो था मदीने से गम को वो क्या हुआ लाया जो था मदीने से हमको वो क्या हुआ आए थे किस तरह से वतन किस तरह चले ना
शगर न गोदियों में गोद के पले सोते कब्र में जो कटाए हुए गले ये वक्त वो था बेटे थे सब आँख के तले ये वक्त वो था बेटे थे सब आँख के तले आबिद से बानो कहती थी मोगलत कलील गए कुछ खाके पाक ले लो के सुगरा अली गए कुछ खाके पाक ले लो के सुगरा अली करबलाए सरवर दिलगीर अलविदा कत्ल गागे हज़रत शब्बीर अलविदा कब्र इब्न सागिब तत्मीर अलविदा लो भाई जान जाती है गम शेर अलविदा भाई जान जाती है गम शेर अलविदा क्या गम नसीब गए ये नवासी रसूल की तुमने मुजावरी नागमारी कबूल की तुमने मुजावरी नागमारी कबूल की चगलुम जो करबला में सकीना वतन चलो सज्जाद कह के गिर पड़े छोटी सी कब्र पर जिंदान खुल गया है सकीना वतन चलो सज्जाद कह के गिर पड़े छोटी सी कब्र पर मजलूम ऐसे गिर पड़े मजलूम ऐसे गिर
ऐसे हुसैन थे गिरे अकबर की लाश पर, जिंदान खुल गया है देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसन, जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन, लेकिन तू बहन शाम में, लेकिन तू बहन शाम में कैदी ही रह गई, खाकर तमाचे सो गई जिंदा की खाक पर, जिंदान खुल गया है करता हूँ याद रो के मैं मंजर वो दर्द का, कानों के जख्म पर जो तमाचा तुझे लगा, बाबा को तू सुना पे, बाबा को तू सुना पे सदा देती रह गई, बाबा सुना पे रोते थे तब तुझको देख कर, जिंदान खुल गया है अम्मा की तरह तुझको न मिल पाई थी रिदा, बाबा की तरह तुझको कफन भी न मिल सका, पत्थर भी खाए शाम में, पत्थर भी खाए शाम में, तूने मेरी तरह ना कैसे गिर के हो गई तेरी भी खम कमर, जिंदान खुल गया है। नारे सलावत। गालिबन 6 से 7 मिनट का मुझे हुक्म है, उसी के अंदर बस कोशिश पूरी करूंगा कि मेरे बाद जो आने वाले सीनियर हैं उनको वो माहौल दे के जाऊँ जिसका वो हक रखते हैं। 2 बंद रब्बे फ़ज़ाइल, उसके बाद 2 बंद तामिल हुक्म बतौर मसाइब, बरज़मत शहंशाह करबला पे बुलंदतर सलावात। किबला जो करबला गए हैं वो वहाँ की आबो हवा जानते हैं, और जो नहीं गए दुआ गो हूँ इसी साल परवरदिगार उन्हें करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। पहली मरतबा यहाँ पे हाज़री और नौकरी का मौका मिल रहा है। 2 बंद बतौर फ़ज़ाइल, फिर उसके बाद रब्दे मसाइब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। शहर सरवर की आबो हवा और है ये जहनों में रखिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। शहर सरवर की आबो हवा शहर सरवर की आबो हवा जन्नत और करबला और जन्नत और करबला और मैं हूँ बीमार
जाने दे कर वो भला। मैं हूँ बीमार जाने दे कर वो भला। ए तबीब इस मर्ज की दवा और गए। ए तबीब इस मर्ज की दवा और गए। और दूसरों से अली का तकाबुल भी क्या। दूसरों से अली का तकाबुल भी क्या। हादसे और गए मौजज़ा और गए। हादसे और गए मौजज़ा और गए। और हुरमला और हुर कैसे एक साथ हो। मेरे बुजुर्ग मौजूद है, शेर देखिएगा। हुरमला और हुर कैसे एक साथ हो। हुरमला और हुए कैसे एक साथ हो। लानती और है मर्तबा। मिलके नारा हैदरी। लानती और गए मर्तबा और गए। बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा। बोली मरियम तकाबुल न करना मेरा। किबरिया की कसम फातिमा और गए। किबरिया की कसम फातिमा और गए। इस कलाम का हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। कि दोगले मुफ्तियों अपनी हद में रहो। दोगले मुफ्तियों अपनी हद में रहो। अब भी गैबत में के मुर्तज़ा और गए। अब भी गैबत में के मुर्तज़ा और गए। आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ। आले अहमद कहाँ और सहाबा कहाँ। बांटना और है मांगना और गए। बांटना और गए मांगना और गए। और गैरों की मिदहत मैं करता नहीं। गैरों की मिदहत मैं करता नहीं। मैं हूँ नायाब मेरी अनार है। मैं हूँ नायाब मेरी अनार और है। बलअज़मत शहंशाह करबला पे बुलंदतर सलावत। हुजूर एक मतला एक शेर, उसके बाद एक कलाम का हुक्म है, उसके चंद अशार आपकी समाअत की नज़र। अपने घर में उन्हें बुलाना है। अपने घर में उन्हें बुलाना है। भाई अपने घर
जिन्हें बुलाना है भाई, जिनके सदके में ये ज़माना है, जिनके सदके में ये ज़माना है। और शेर बतौर ख़ास कि मेरे घर में है सैयदा मेहमान, मेरे घर में है पंजते मेहमान, भाई कैसे कह दो गरीब खाना है, कैसे कह दो गरीब खाना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ुल्फ़ कलाम के चंद अशार क़िबला तशरीफ़ फरमाएं। हम तुमको मिला देंगे हम तुमको मिला देंगे फूफी जान से जाकर, खामोश ना हो बाप से बातें करो अकबर। किस तरह बहलाया है मौला ने शहजादे को। खामोश ना हो बाप से बातें करो अकबर। और ए लाल कलेजे में अभी दर्द तो होगा, अरे निकला है लहू इतना बदन सर्द तो होगा। अरे तुम चुप हो तो चलते हैं, तुम चुप हो तो चलते हैं, मेरे कल्ब पे खंजर खामोश ना हो बाप से बातें करो अकबर। और तुम खून उगलते हो तो भर जाता है चूल्हा, रे बतला कर ज़ब्त कहाँ तक मेरे आंसू, रे बेटा निकल आएगा कलेजा मेरा बाहर, खामोश ना हो बाप से बातें करो अकबर। और तुम खुद भी समझते हो ये मजबूरी मेरी है, अरे आहिस्ता जो
चलता हूँ कमर टूट गई है। अरे थोड़ा सा सफर बाकी है, हिम्मत करो दिलबर, खामोश ना हो, बाप से बातें करो अकबर। और दरिया पे गए होंगे जो लड़ते हुए बेटा, रे जल्दी से बताओ मेरा फटता है कलेजा, रे किस हाल में है लाश अब्बास दिलावे, खामोश ना हो, बाप से बातें करो अकबर। और माथे से पसीना तो अभी साफ किया है, अरे क्या ज़ख्म की तकलीफ में मुँह खोल दिया है। अरे सांसें क्यों मेरी जान नहीं आती बराबर, खामोश ना हो, बाप से बात करो अकबर। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलवात। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वकुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमाम मुबीन, और हमने हर शय को जमा कर दिया है एक रोशन इमाम में। ये जो आयत है सूरह यासीन की आयत है और इसका पता बहुत खूबसूरत है। क़ल्ब क़ुरान, क़ुरान का दिल सूरह यासीन। हदीस है कि हर शय का एक दिल होता है और क़ुरान का दिल सूरह यासीन है। क़ल्ब क़ुरान में अल्लाह ने 12वीं आयत में इमाम का ज़िक्र किया है। तवज्जो का तालिब, यानी 12वीं आयत है, क़ल्ब क़ुरान है, क़ुरान का दिल है, और परवरदिगार आलम कह रहा है कि हर शय जमा कर दी है इमाम मुबीन में। यहाँ पर इमाम मुबीन से मुराद क्या है? यहाँ पर उलमा ने बयान किया है, लिखा है मुफस्सिरीन ने। अगर आप जानते हैं, साहिबान इल्म व फ़हम हैं, उलमा को सुनने वाले लोग हैं, कि क़ुरान की तफसीर होती है और जो उसमें राज हैं, जिसका ज़ाहिर कुछ है लेकिन बातिन में कुछ है,
उसकी तावील होती है। यानी कुरान की तफसीर भी होती है, तावील भी होती है। तफसीर किसे कहते हैं? यानी कुरान की आयत को देखकर उसकी माना बयान करना, अरबी ग्रामर की गहराइयों से उसको देखना, उसका शान नुज़ूल बयान करना, ये सब तफसीर है। लेकिन उसके ज़ाहिर के पीछे छुपा हुआ जो पैगाम है उसकी तावील होती है। और ना तफसीर वारिसे किताब के बगैर मुमकिन है, ना तावील वारिसे किताब के बगैर मुमकिन है। तफसीर के लिए भी आले मोहम्मद के दर पे आना पड़ता है, तावील के लिए भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर पे आना पड़ता है। तो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर जो फरमाया है इमाम मुबीन से मुराद क्या है, इस पे बहस की गई है। उलमा ने बयान किया इसका मतलब है ये कोई किताब मुबीन है, इसका मतलब नामा आमाल हैं। इसलिए कि इससे पहले परवरदिगार आलम ने कहा है कि हम लोगों के तमाम जो आसार हैं, उनके जो आमाल हैं वो जमा करते जाते हैं। आमाल भी अल्लाह जमा कर रहा है और उन आमाल से होने वाले जो असरात हैं वो भी अल्लाह जमा कर रहा है। तो ये ख्याल है, यानी ज़ाहिरन मालूम होता है कि कोई रिकॉर्ड है, कोई किताब है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें परवरदिगार आलम हर शय को जमा कर रहा है। यानी पूरी इंसानियत जमा है इमाम मुबीन में, सब कुछ जमा है इमाम मुबीन में। तो यहाँ पर देखना होगा कि इमाम मुबीन का मतलब क्या है। इमाम मुबीन किसे कहते हैं? कि वो जो रिकॉर्ड है, वो जो किताब है, वो है जिसमें हर चीज जमा है। वो उसकी सूरत क्या है? जैसे परवरदिगार आलम ने लूलू और मरजान का जिक्र किया है सूरह रहमान में, उसका जाहिर यानी वो अल्लाह की नेमत हैं कि समंदरों से जो मोती मिल रहे हैं, जो मरजान है। लेकिन उसका बातिन यह है कि अल्लाह अपनी नेमत उज़मा बयान कर रहा है। अल्लाह बयान कर रहा है कि हमने तुम्हें हसन और हुसैन दिए हैं, उससे मुराद इमाम हसनैन करीमैन हैं। इसी तरह यहां पर बज़ाहिर मालूम होता है किताब है, लेकिन किताब किस सूरत में है? देखें, पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल सबने डीएनए का नाम सुना है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर मौजूद है। यानी परवरदिगार आलम ने एक किताब रखी है और उस किताब में बता दिया है कि इंसान किस तरह का होगा, वो दुनिया में किस सूरत में आएगा, जब परवान चढ़ेगा उसके नैन नक्श क्या होंगे, उसका कद काट क्या होगा, उसका रंग रूप क्या होगा। ये सब किस चीज में है? ये सब है जेनेटिक कोड में, डीएनए में है। गोया एक किताब है जो खुलती जा रही है, इंसान बनता जा रहा है। ये किताब है, अल्लाह ने इसमें जमा कर दिया है। लेकिन इस किताब की सूरत ये वाली नहीं है जो कागज वाली दफ्ती वाली किताब होती है। ये भी किताब है मगर ये अलग अंदाज की किताब है। तो ये कैसी किताब है? जिसमें अल्लाह ने सब कुछ जमा कर दिया है। तो अल बुरहान से पेश कर रहा हूं, अल्लामा बहरानी ने रिवायत लिखी है, इसी की तफसीर में मैंने हवाला पेश कर दिया कि इस्लाम की दो बड़ी शख्सियात हजरत अव्वल और हजरत सानी, हमारे भाइयों के यहाँ इनका बड़ा मकाम है। वो आए रसूल खुदा की खिदमत में और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आयत आई है इसमें जो इमाम मुबीन का जिक्र है, ये बता दीजिए क्या इससे मुराद तौरात है? सरकार ने कहा नहीं। कहा तो क्या इससे मुराद इंजील है? सरकार ने कहा नहीं। कहा तो इससे मुराद क्या कुरान है? कहा नहीं। कहा सरकार, जब ना तौरात मुराद है, ना इंजील मुराद है, ना कुरान मुराद है, तो इमाम मुबीन से मुराद क्या? ये इमाम मुबीन कौन है? सामने मेरे मौला अली बैठे थे, रसूल ने इशारा किया, ये वो है जिसे अल्लाह ने इमाम मुबीन कहा। ये है जो इमाम मुबीन है। अब इमाम मुबीन में अपना तारुफ मैंने नबी की जबान से तारुफ आपके सामने पेश किया, रिवायत आपके सामने पेश की। वो नबी है, ये वसी है, वो रसूल है, ये नफ्से रसूल है। नफ्से रसूल ने अपना तारुफ कैसे कराया? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि कुरान अगर कोई बयान कर सकता है तो वो आले मोहम्मद हैं।
हम तफसीर भी उनसे लेते हैं, तावील भी उनसे लेते हैं। रिवायत आपके सामने पेश करूं, वो नबी ने तारुफ कराया, अब ये मौला खुद तारुफ करा रहे हैं। हजरत सलमान साथ में हैं, एक जगह से गुजर हुआ, वहां पर एक टीला था जिस पे बहुत सारी चूंटियां थी, इस तरह के चादर सी बिछी हुई थी। जनाब सलमान ने देखकर कहा, सुबहान है वो जात जो इनकी तादाद से वाकिफ है, सुबहान है वो जात जो इनकी तादाद से वाकिफ है। मेरे मौला ने फौरन कहा कि सलमान ये ना कहो सुबहान है वो जात जो इनकी तादाद से वाकिफ है, बल्कि ऐसे कहो सुबहान है वो जात जिसने इनको खल्क किया है। भाई जिसको हम्द करना अली सिखाएं वो सलमान ना बने तो क्या बने। कहा ये ना कहो कि तादाद से वाकिफ है, बल्कि ये कहो सुबहान है वो जात जिसने इनको खल्क किया। इसलिए कि सलमान इनकी तादाद से तो मैं अली भी वाकिफ हूं, मैं अली भी इनकी तादाद से वाकिफ हूं। फौरन हैरान होकर कहा, या अली ये इतनी तादाद में पूरी चादर सी बिछी हुई है और आप इनकी तादाद से वाकिफ हैं। का सलमान फकत तादाद से वाकिफ नहीं हूं, यह भी जानता हूं कि नर कितने हैं, मादाएं कितनी हैं, ये भी जानता हूं। जनाब सलमान ने कहा कि मौला आप ये भी जानते का सलमान कुरान पढ़ो, वह कुल्ला शैयन अहसनहु फी इमाम मुबीन, पहचानो में अली ही वो इमाम मुबीन हो। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आलम तवज्जो फरमा रहे हैं मोहतरम। इमाम मुबीन, अल्लाह ने हर शय को जमा कर दिया है इमाम मुबीन में। तो मेरा एक सवाल है दुनिया से कि सबका अकीदा है, फकत शियों का नहीं, अहले सुन्नत जितने भी मुसलमान हैं सबका अकीदा है कि अल्लाह ने हर शय को कुरान में बयान कर दिया है। कुरान में हर खुशकोतर का जिक्र है, कुरान में सारा इल्म है। तो मेरा सवाल है, अगर कुरान में सारा इल्म है, जो कि हमारा अकीदा है कि है, और जो ये अकीदा नहीं रखेगा उसका ईमान कामिल नहीं है कि अल्लाह ने सब कुछ कुरान में बयान कर दिया है, तो मेरा सवाल यह है, फिर मास्टर्स के लिए, आला तालीम के लिए हम बाहर क्यों जाते हैं? हमारे पास तो किताब है, उसमें अल्लाह ने सब बयान कर दिया है। तो फिर ये आला तालीम के लिए हम वेस्ट को क्यों देखते हैं, हम मगरिब का रुख क्यों करते हैं, हम यूरोप का रुख क्यों करते हैं, हम अमेरिका का रुख क्यों करते हैं, जबकि मुसलमानों के पास तो कुरान है, उसमें अल्लाह ने सब कुछ बयान कर दिया है। तो जब सब कुछ बयान कर दिया है तो हम वहां क्यों जाएं? दिखाइए भाई एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मूला कुरान में कहां है, बताइए। ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ज़ाहिर दामन वक्त तंग हो रहा है, मैं बहुत तेजी से गुजरना चाह रहा हूं और चाह रहा हूं कि पहली दफा यहां आया हूं तो जितना बयान हो सके करके जाऊं, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि जिस तरह इंसान जहां नमाज पढ़ता है वो जगह गवाही देती है कि इसने यहां पर अल्लाह का सजदा किया, इसी तरह जहां पर इंसान जिक्र अहले बैत करता है वो जगह भी गवाही देती है कि यहां पर इसने जिक्र अहले बैत किया। दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ज़ाहिर मोहतरम सवाल है या नहीं कि जब सब कुछ कुरान में है तो फिर ये सारी चीजें कुरान में दिखाइए तो शायद जवाब आएगा। मैं अगर सवाल करूं, बारे लहा तूने हर चीज कुरान में रखी है तो हमें ये सारी चीजें नजर क्यों नहीं आ रही हैं, ये सारे उलूम हमें नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला कुरान में क्यों नहीं नजर आ रहा, हमको हार्ट ट्रांसप्लांट और दीगर जो प्रोसेसेस हैं ये करने का तरीका कुरान में क्यों नजर नहीं आ रहा, ये मेडिकल साइंसेस, ये इंजीनियरिंग साइंसेस, ये बिजनेस, ये सब कुछ जो भी उलूम हैं ये हमें कुरान में क्यों नजर नहीं आ रहे। तो अजब नहीं कि जवाब आए, बंदे हमने तो पता बताया है, लोग जाते नहीं हैं। बारे लहा कहां बताया है, का पढ़ो तो सही, वह कुल्ला शैयन अहसनहु फी इमाम मुबीन, कि हमने हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया। कुरान सामित कैसे समझ में आएगा जब तक कुरान नातिक के दर पे ना जाओ, जब तक कुरान नातिक के दर पे नहीं जाओगे कुरान सामित समझ में आने वाला नहीं है। सब कुछ कुरान में है मगर वारिस कुरान बताएगा कहां पर है, और वारिस तो ऐसा है जो मिंबर पे बैठ के कहता है सलूनी जो पूछना है पूछो। मेरे मौला ने तो कहा, इमाम मुबीन ने तो कहा जो पूछना है पूछो। इमाम ने पाबंदी नहीं लगाई कि सवाल करने पे पाबंदी है। भाई ये मौला ने जो दावा किया है इसके पीछे राज है कि वो और हैं जो सवालों पे पाबंदी लगाते रहे, वो और हैं जो अहदीस बयान करने पे पाबंदी लगाते रहे। मैं वो हूं जो नफ्से रसूल हूं, मैं शहर इल्म का दरवाजा हूं, पूछो तो सही, मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो। और आज तो साहिबान इल्म फहम
और बहुत से नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। आज तो भाई पूछने की बड़ी फजीलत है, आज तो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज तो सर्च इंजन्स का दौर है, और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप खोलें तो वो लिखा नजर आता है आस्क एनीथिंग, जो चाहो पूछो। आज लोग फैसिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आज लोग हैरान हो रहे हैं या नहीं हो रहे कि भाई पूछो, वो कह रहा है जो चाहो पूछो, जिस सब्जेक्ट से चाहो पूछो। तो इसका मतलब यह है कि एआई, मैं तवज्जो का तालिब हूं, इंसानों ने मसनूई जहानत बनाई है, जहानत है लेकिन मसनूई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये जदीद दौर के बड़े हथियार हैं, जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं आपके सामने। वरना अभी आपने देख लिया, मैं सियासी बातें करने का आदी नहीं हूं, मिंबर से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात बयान नहीं करता, लेकिन आपने दुनिया के हालात देख लिए ना। बहुत से ऐसे हैं जो न्यूक्लियर ताकत रखे बैठे हैं, चलाने की हसरत में मरे जा रहे हैं, चला नहीं पा रहे, इसलिए कि वॉरफेयर बदल चुका है। अब जंग का तरीका बदल चुका है। अब दुनिया पे रूल वो नहीं करेगा जिसके पास फकत मिलिट्री माइट हो, अब दुनिया पे राज वो करेगा जिसके पास इल्म हो, जिसके पास इल्म हो। इल्म की बड़ी फजीलत है, मुझे जाना है, एआई जहन में रखिएगा, लेकिन एक रिवायत आपको हदिया कर रहा हूं कि मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सादिक आले मोहम्मद, इमाम ने बयान किया कि जनाबे सुलेमान, कौन नहीं जानता जनाबे सुलेमान को, अल्लाह ने उनको अजीम मुमलिकत अता की, इतने बड़े हुक्मरान गुजरे हैं कि फकत इंसानों पे नहीं, जानवरों पे, चरिंद परिंद सब पे हुकूमत की, जिन्नात पे हुकूमत की। तो उनकी तरफ अल्लाह ने 3 चीजों को भेजा, दौलत को भेजा, इल्म को भेजा, हुकूमत को भेजा। मौला की रिवायत है, मौला बयान करते हैं, कहा जाओ और जाकर उनसे कहो कि एक को इख्तियार करें, 2 को पलटा दें, एक को चुनाव कर लें, एक को चूज करें, बाकियों को पलटा दें। तो जनाब सुलेमान के पास जब 3 चीजें आई तो उन्होंने इल्म को चुना, कहा मैं इल्म को चुनता हूं। तो जब इल्म को चुना तो दौलत भी ठहरी रही, हुकूमत भी ठहरी रही। जनाब सुलेमान ने कहा कि भाई क्या खुदा ने तुमसे नहीं कहा था कि एक को चुनूं, 2 को पलटा दूं? मैंने एक को चुन लिया, तुम यहां क्यों मौजूद हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मगर साथ में अल्लाह ने यह भी कहा था जहां इल्म हो, अगर इल्म रुके तो तुम भी वहीं रुक जाना। इसका मतलब यह है सही हुक्मरान वो है जो आलिम हो, और दौलत सही माना में वही खर्च करेगा जिसके पास इल्म हो। अगर नाअहल के पास दौलत चली जाए तो दुनिया में तबाही है, नाअहल के पास हुकूमत चली जाए तो दुनिया में तबाही है। यही तो वजह है कि जो इनकलाब बर्पा करेगा वो इमाम मुबीन ही तो होगा, जो जुल्म जोर से भरी दुनिया को अदल इंसाफ से पुर कर देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात मैं कर रहा था एआई की कि आज पूछने, आज सवाल करने को पसंद किया जा रहा है। हमारे एक आलिम का जुमला है, जुमला उनका पेश करूंगा, और आगे इस फकीर की एक छोटी सी कोशिश है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे एक आलिम ने खूब कहा, उनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ और बिल्कुल सही कहा कि ज्यादा इतराओ नहीं, अगर तुम्हारे पास एआई है तो हमारे पास एएलआई अली है। तुम्हारे पास अगर एआई है, मगरिब से मुखातिब होकर कहा, अगर तुम्हारे पास एआई है तो हमारे पास एएलआई है। तुम्हारा अब ये दावा कर रहा है, हमारा 1000 साल पहले दावा कर चुका। अब ये मैं चाह रहा हूं आपके सामने पेश करूं कि ये भी साथ में इसमें ऐड कर लीजिए कि भाई नीचे लिखा हुआ आता है एआई कैन मेक मिस्टेक्स, ये एआई है, ये गलती कर सकता है, तुम्हारा वाला गलती कर सकता है, हमारा मासूम है, तुम्हारा नकली है, हमारा असली है। तवज्जो फरमाने दाने मोहतरम, उनका मसनूई है, हमारा हकीकी है, उनका खुद साख्ता है, हमारा खुदा साख्ता है। ये उन्होंने खुद बनाया है और हमारे पास जो है उसे अल्लाह ने बनाया है। इस जो जैसा बनाता है, जो खुद जैसा होता है वैसी चीज बनाता है। इंसान खताकार है, इंसान का बनाया हुआ खता करता है, अल्लाह खता से पाकीज़ा है, उसका बनाया हुआ मासूम है, उसका बनाया हुआ मासूम है। तो जाने मोहतरम, अब तो एआई है। मैं देख रहा था एक जगह, एक चैनल है यूट्यूब पे तशय्यो के नाम से, तो वहां पर उन्होंने कसीदे अपलोड करना शुरू किए। एक एआई को ट्रेन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब यहाँ सॉफ्टवेयर से जुड़े जो लोग बैठे हैं वो इस बात को बेहतर जानते हैं कि एआई को ट्रेन किया जाता है, उसको डेटा दिया जाता है, और बाकायदा एआई एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। तो उन्होंने एक ऐसा एआई बनाया
जिसको ट्रेन किया कि वो कसीदे सुनाए, और उसने कसीदा सुनाया और बड़े खूबसूरत अंदाज से कसीदा सुनाया। यानी उसने क्या किया, ईरान, इराक और पाक व हिंद सबको मिला दिया। यानी उसने आवाज़ मिसाल के तौर पे फ़ारसियों से ले ली, और उसने जो तर्ज है वो अरबियों से ले ली, और शायरी जनाब मोहसिन नकवी साहब की ले ली, यानी शायरी उर्दू में हो गई, और तर्ज जो है वो फ़ारसियों की हो गई, और आवाज़ जो है वो अरबियों की हो गई। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कसीदा सामने आ गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, ये तो चाहने वाले हैं ना जिन्होंने पसंद किया, तो अली का जिक्र सुन के सब खुश थोड़ी होते हैं, सब खुश थोड़ी होते हैं। जो चढ़ने वाले थे वो चढ़ गए, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने काम किया है ये हराम है, कंप्यूटर से पढ़वाना भी जायज़ नहीं है। भाई अभी तक तो दुश्मनी जानवरों तक थी, फलों तक थी, सब्जियों पर। एक एक जुमला इसके पीछे वाक़यात मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, हक़ाइक़ मौजूद हैं कि जानवरों से दुश्मनी की, आले मोहम्मद से करीब जो जानवर हुए उनसे दुश्मनी शुरू हो गई, जो फल और सब्जियां आले मोहम्मद से करीब थी उनको जो पसंद थी उससे दुश्मनी हो गई, और अब तो कंप्यूटर से भी दुश्मनी हो गई कि ये भी अली अली कर रहा है। अब मसला ये है कि इंसानों की तो ज़बान काट दिया करते थे, अब कंप्यूटर कितने तोड़ेंगे? तवज्जो का तालिब हूँ भाई, ज़बानें तो कटती रही हैं, तारीख़ है, लेकिन अली वालों ने ज़िक्र अली करना नहीं छोड़ा। अब कितने कंप्यूटर तोड़ेंगे, कितने डेटा सेंटर्स को आग लगाएंगे, अब तो कंप्यूटर भी अली अली कर रहा है। तो कसीदा उसने सुनाया तो फतवे आ गए, जब फतवा आया तो वो जो था वो भी होशियार था, उसने कहा भाई हम तो 14 सदियों से जवाब दे रहे हैं, अब मैं जवाब नहीं दूंगा। भाई मसनूई सही है तो जहानत ना, तो ऐसे पूछो, जब एतराज़ तुम पर हुआ है तो जवाब भी तुम ही दो। उसने कहा भाई फतवा आया है कि मौला अली का कसीदा पढ़ना जायज़ नहीं है, कंप्यूटर के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो अली अली करे, अब फतवे का जवाब दो। तो उसने जवाब जनरेट किया, और जवाब बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने जनरेट किया। उसने कहा फतवों से अपने हमें कब तक डराएगा, फतवों से अपने हमें कब तक डराएगा, कब तक रखेगा बुग़्ज़ जिक्र, कब तक छुपाएगा। भाई हैदर का जिक्र है ये तो रोका ना जाएगा, ज़बानें जो काट दोगे तो AI सुनाएगा, ज़बानें जो काट दोगे तो AI सुनाएगा। तो जाने मोहतरम, आज सवाल करने की बड़ी फजीलत है, और मेरे मौला ने तो उस वक्त कहा जो पूछना है पूछ लो। एक रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मोमिनीन तशरीफ़ फरमाएं जिनको दिलचस्पी है कॉस्मोलॉजी में, एस्ट्रोफिज़िक्स में, तो वो ये समझेंगे कि, और तमाम मोमिनीन समझेंगे, तमाम अली वाले समझेंगे, इसलिए कि जो अली वाला होता है वो इल्म से करीब होता है। अज़ान मोहतरम, मौला का कौल जहन में रखिएगा, मौला का दावा जहन में रखिएगा। और मैं आपके सामने एक रिसर्च पेश करूं। एक रिसर्च हुई, क्योंकि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये जो आते हैं, यानी ये क्या हैं, ये जो निज़ाम शमसी जब बन रहा था उस वक्त में जो सैयारे कामयाबी से न बन सके वो टुकड़ों में तकसीम हो गए, तो वो खला में घूमते रहते हैं। वो हमारे निज़ाम शमसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे सोलर सिस्टम से भी आ जाते हैं। अभी भी एक ऑब्जेक्ट आया था 3i एटलस के नाम से, बड़ा हंगामा हो गया कि जनाब ये कोई खलाई मखलूक है, कोई दूसरे प्लैनेट से, किसी दूसरे निज़ाम शमसी से कोई मखलूक ताल्लुक़ रखती है जिनका ये स्पेस क्राफ्ट है। ये सब बहुत कुछ हुआ, अमेरिका में इस पर बहुत बात हुई। तो जाने मोहतरम, ये तहकीक हुई। अब आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स पुरानी बात हो चुकी है, अब स्पेस फोर्स पर बात जा चुकी है। अब लोगों ने आसमानों की बात कर ली है, अब खला की बात कर रहे हैं। तो अब बहुत से ममालिक ने अपनी स्पेस फोर्स तश्कील दे दी है, और वो वजूद में आ चुकी है, एक हकीकत बन चुकी है। बड़े बड़े मुल्कों ने स्पेस का रुख किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, अमेरिका ने किया है, और फिर उनके जो एलाइज़ हैं और इनके जो एलाइज़ हैं वो सब मिले हुए हैं। अब तो चांद को टारगेट किया जा रहा है। अभी आर्टेमिस 2 के नाम से मिशन जा चुका, जो चक्कर लगा के आया है, इंसानों को भेजने की तैयारी है, दोबारा चांद पे जाएं। ये सब चांद की तरफ जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक शेर मशहूर है कि चांद पे हम क्यों जाएं, हम तो उनके नौकर हैं, चांद तारे खुद जिनके दर पे आते जाते हैं। अच्छा, ये बात तो सच है, लेकिन जवानों के लिए कह रहा हूं कि जनाब बिल्कुल बात सही है कि हम उनके नौकर हैं जिनकी दहलीज पे चांद सितारे उतर आते हैं। तो अगर आका की शान ये है कि आसमान से सितारों को बुला ले, चांद सूरज को बुला ले, तो गुलाम की शान इतनी तो होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए कि खुद चांद पे पहुंच जाए। हम तो अपने सैटेलाइट भी किराए पे लॉन्च करवाते हैं, हम तो चाइना का रुख करते हैं। तो जाने मोहतरम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में से एक ये है, भाई हलाल हराम ये तो है ही,
वाजिबात पे अमल ये तो है ही, हराम से परहेज ये तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ स्किल्स होने चाहिए जो इंसान हासिल करे इस नियत से कि मैं अपने इमाम मुबीन की खिदमत करूंगा। जे इस नियत से अगर आपने तालीम भी हासिल की तो तालीम भी इबादत बन जाएगी, आपका यूनिवर्सिटी में बैठना भी इबादत बन जाएगा, इसलिए कि आपने इमाम मुबीन की खिदमत को चुना है कि मैं अपना ये स्किल, मैं अपनी एजुकेशन इमाम ज़माना के कदमों में पेश करूंगा अपनी डिग्री को कि मौला आपका खादिम हूं। तो अज़ान मोहतरम तहकीक हुई कि ये जो दूसरे सैयारों से या दूसरे निज़ाम शमसी से जो डिफरेंट सोलर सिस्टम्स हैं उनसे ये एस्टेरॉइड्स, क्या कहूँ उर्दू में शहाब साकिब जिसे कहते हैं, ये जो आ जाते हैं, आपने देखा अक्सर ये बड़े बड़े तोदे होते हैं पहाड़ नुमा, वो आ जाते हैं, ये प्लैनेट्स की बाक़ियात हैं, सैयारों की बाक़ियात हैं, तो ये आ जाते हैं। भाई डायनासोर्स ख़त्म हुए, तवज्जो का तालिब हूँ, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ मामला खुश्क होगा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ज़ाने मोहतरम डायनासोर्स खत्म हुए, क्या हुआ, एक एस्टेरॉइड आकर टकरा गया था, सारी दुनिया तहस नहस हो गई। और इस्लाम में भी है कि दुनिया कई बार आबाद हुई है और ख़त्म हुई है, तो ये एक साइकिल है जो चलता आया है, और साइंस भी यही कह रही है। कभी डायनासोर्स हुआ करते थे, इंसान को अपनी ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत है, उसने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कभी फिर कुछ आगे टकरा जाए और हम ख़त्म हो जाएं, तो नासा ने और दीगर इदारों ने तहकीक शुरू कर दी, डार्ट मिशन और बहुत सी ऐसे तरीके निकालें कि कैसे हम इन एस्टेरॉइड्स को खला में डिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। तो उन्होंने तहकीक की, क्योंकि स्पेस टूरिज़म भी शुरू हो रहा है, अब बात खला तक जा चुकी है, लोग छुट्टियां मनाने खला में जाया करेंगे आने वाले वक्तों में। दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना दिल चाहता है पेश करूं अपने भाइयों के सामने जो मेरे जवान हैं, बुज़ुर्ग। मैं बुज़ुर्गों के लिए तो हमेशा कहता हूं, मैंने इतनी मजलिसें पढ़ी नहीं होंगी जितनी इन्होंने सुनी हैं, तो ये तो अजर व सवाब के लिए यहाँ पर मौजूद है। खुदा ने जज़ाए खैर दे और बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पर सलामत रखे। लेकिन जवानों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सोचिए इस बात पर, स्पेस टूरिज्म शुरू हो रहा है, अब खला में बात जा रही है, कंपनियां लगी पड़ी हैं। अब जो दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका, उसकी भी वो स्पेस कंपनी है जिसके शेयर्स बढ़ने की वजह से आप देखें वो ट्रिलियनियर बन गया। तो मुस्तकबिल क्या है, किस तरफ है? और हमारे इमाम ने पहले ही कह दिया था, तवज्जो का तालिब हूं, हमारे इमाम ने पहले ही कह दिया था, जो अलामात हैं उसमें से एक ये भी है, मौला ने कहा कि देखो जब लोग आसमानों का रुख करें, लोग जब आसमानों का रुख करें और आसमानों को निचोड़ें, तवज्जो का तालिम इस जुमले पर, क्या कहा? आसमानों को निचोड़ें। मैंने सोचा आसमान को कोई कैसे निचोड़ सकता है, फिर समझ में आया जैसे जमीन को निचोड़ रहा है। भाई जो इसके अंदर गैस है, मादनियात हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, सब कुछ तो निकाल लिया इंसान ने, तो यहां पर रेयर हो गए ना, खला में थोड़ी हैं, अल्लाह के खजाने में कमी थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि भाई खला का रुख करो, तो स्पेस इंडस्ट्री भी बनने जा रही है कि इन एस्टेरॉइड्स पे पहुंचा जाए और इन्हें माइन किया जाए, यहां से मेटल्स निकाले जाएं, मादनियात निकाले जाएं, इसलिए कि जमीन में अब वो कम हो गए, इंसान सब निकाल रहा है। और भी एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, बहुत सी चीजों की वजह से कहा जा रहा है कि भाई इंडस्ट्रीज को स्पेस में मुंतकिल किया जाए, ये सब फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में बताया गया कि ये किस तरह से दूर दराज निज़ाम शमसी से सफ़र करते हुए हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल होते हैं। तो उन्होंने तमाम जितने भी वो कर सकते थे डेटा कलेक्ट करके सिमुलेट किया। जब उन्होंने कंप्यूटर्स में उसको फीड करके सिमुलेशंस रन की तो पता चला कि आसमान में रास्ते हैं, आसमान में रास्ते हैं। किस तरह से? एक टेक्निक का ये इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ है ग्रेविटी, कशिश सकल। तो ये दीगर प्लैनेट्स की और सितारों की ग्रेविटी, कशिश सकल से सहारा लेते हुए सफर करते हैं। एक प्लैनेट की, एक सैयारे की, एक सितारे की ग्रेविटी ने आगे ढकेलती है, फिर दूसरे तक पहुंचते हैं, वो भी आगे ढकेलता है। तो इन्होंने जब रास्ता देखा तो फिर यकीन कीजिए इंसान कांप उठता है। मैंने जब वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, वो उसका नाम ही ये था, देयर आर हाईवेज इन द स्पेस। आसमान में हाईवेज हैं, आसमान में रास्ते हैं। ये इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, सैटेलाइट्स के बाद, ये
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम आपने सुना होगा। ये खला में मौजूद टेलीस्कोप है जो दुनिया में डेटा भेज रही है। ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद, हबल को इस्तेमाल करने के बाद, जेम्स वेब को इस्तेमाल करने के बाद, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद इंसान 1400 साल बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि आसमान में रास्ते हैं। जब मैंने ये पढ़ा, मेरी अक्ल ने एक मर्तबा माजी में सफर किया, माजी वक्त के पर्दे चाक करते हुए मैंने देखा, मुझे मस्जिद कूफा नजर आई, मस्जिद का मिंबर नजर आया, मुझे मेरा मौला नजर आया जो कह रहा था, सलोनी जो पूछना है पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं, मुझसे पूछो तो सही। भाई ऐनुल्लाह देख रही थी, लिसानुल्लाह बता रही थी। हमारी आंखें वहां नहीं पहुंच सकती हैं। यही तो फायदा है अली वाला होने का कि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। दुनिया की ताकतवर से ताकतवर तरीन टेलीस्कोप वहां पर नहीं पहुंच सकती जहां ऐनुल्लाह देख रही है, लिसानुल्लाह बता रही है। हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हम ऐनुल्लाह से देखते हैं, हम लिसानुल्लाह को सुनते हैं, तो हमें वो राज पता चलते हैं कि काश आज के साइंटिस्ट अली के दौर में होते। मेरे मौला की कदर ही नहीं की। पूछने वालों ने क्या पूछा, सर में बाल कितने हैं, अमामे में पेच कितने हैं, आज मैं क्या खाऊंगा। एक अहले सुन्नत आलिम कहते हैं जो मौला अली को बहुत मानते हैं और दीगर तमाम लोगों पर मौला को अफजल जानते हैं, उनसे सवाल किया गया कि आप आखिर अली को क्यों अफजल जानते हैं, आपका अकीदा तो कुछ और है, दीगर शख्सियात पे आप अली को फौकियत क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा एक हकीकत की वजह से। कहा वो हकीकत क्या है। कहा वो हकीकत यह है कि मैंने सारी कायनात को अली की तरफ झुकते हुए देखा है, अली को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा। सारी मखलूक अली की मोहताज नजर आती है, अली किसी का मोहताज नजर नहीं आता। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है मेरे मौला, दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, इमाम मुबीन वो है जिसमें परवरदिगार ने हर शय को जमा कर दिया है। दामन वक्त तंग हो गया है, बस मैं चाह रहा हूं कि ये बात जब यहां तक ले आया हूं तो ये हदिया ज़रूर करूं आपको। अज़ान मोहतरम, वो और हैं जो सवालों के डर से जवाब बदल देते हैं। हमारा इमाम वो है जो कहता है पूछो जो पूछना चाहते हो। एक वाकया है, चूँकि बात स्पेस की आ गई ना, तो हमारा अकीदा है कि सरकार को जो मेराज हुई, एक तो वाज़े कर दूं जवानों तक ये बात पहुँचे, हमारे यहाँ जो शब मेराज का कॉन्सेप्ट है जो मनाई भी जाती है रजब के महीने में। अज़ान मोहतरम, हमारे यहाँ हमारे उलमा ने जो हमें बताया है, जो रिवायात में है कि नबी को एक मेराज नहीं है, मुतअद्दिद मेराजें हुई हैं। एक मेराज नहीं हुई, बहुत सी मेराजें हैं सरकार के लिए। तो हम जो मनाते हैं वो तारीख़ वो बेसत के हवाले से है, वो बेसत के हवाले से है, न कि मेराज। चलें साथ में अगर मेराज की भी कोई मुबारकबाद दे देता है या मेराज को भी मना लेता है तो ये ज़रूरी है कि ये समझे कि हमारा अक़ीदा है कि सरकार को जिस्मानी मेराज हुई थी। ये नहीं है कि रूह परवास करके गई थी, ये नहीं है कि ख्वाब में देखा था, बल्कि हम फिज़िकल मेराज को मानने वाले हैं। और इसलिए क्योंकि हमारे इमाम ने कहा है, हमारे इमाम ने कहा है। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था, आज भी हैं दुनिया में, आपको लोग मिलेंगे, सर्च करके देख लीजिएगा, फ्लैट अर्थर्स मौजूद हैं या नहीं, जिनका मानना है कि दुनिया चपटी है, सब सैटेलाइट ने दिखा दिया है, फिर भी नहीं मानते। तो आप यहाँ से हम जब दलीलें पेश कर रहे हैं और लोग नहीं मान रहे तो उनसे शिकवा कैसा, जो सामने देख के नहीं मान रहे कि दुनिया स्फीयर है, गोल है जिसे हम कहते हैं, वो नहीं मानते फ्लैट अर्थर्स मौजूद हैं। तो अज़ान मोहतरम, उस दौर में ना तो हवाई जहाज़ थे, ना तो रॉकेट्स थे, कुछ नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था ये आसमान क्या है। मेरे मौला का दौर है, सादिक़ आले मोहम्मद का दौर है। भाई जाफ़र तैयार में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजहुम, जाफ़र तैयार में और जाफ़रिया बारगाह में ज़िक्र जाफ़र सादिक़ है कि इमाम मुबीन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जाफरी इलाका है ना, जाफरी इलाका। जब लफ्ज़ जाफरी आता है तो मुझे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का वो जुमला याद आ जाता है, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, कि इनकी मोहब्बत ही तो है ना वीज़ा फ़ीस जन्नत में जाने की। तो सब जब जाएंगे ठहरेंगे, और जाफरी जब जन्नत के दरवाज़े पे पहुँच के रुकेगा तो फ़रिश्ते कहेंगे तू क्यों रुक गया जाफरी, तू जाफरी, तेरी एंट्री फ्री है। दुरूद पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि सादिक़ आले मोहम्मद का दौर है। हाकिम बड़ा इल्म दोस्त बादशाह था ना, फिर तो बाद में सबने इल्म का दावा किया कि भाई हम बहुत इल्म दोस्त हैं, आओ हमसे पूछो, डिस्कस करो। तो वहाँ पर एक शख्स पहुँचा और उसने एक सवाल किया। बहुत तेज़ी से गुजरूँगा, तफसील है, मैं बहुत तेज़ी से गुजरूँगा। अज़ान मोहतरम, उसने सवाल किया कि ये बताओ तुम मुसलमानों का अक़ीदा है कि तुम्हारे नबी को मेराज हुई? कहा हाँ बिल्कुल हमारा अक़ीदा है। कहा तो फिर 7 आसमान है ना? 7 आसमान है। कहा हाँ 7 आसमान है। कहा ये बताओ जब तुम्हारे नबी मेराज पे गए तो आसमान फटा कैसे और जुड़ा कैसे? तवज्जो का तालिम हो, सवाल क्या किया उसने कि आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ वक्त दे दो ताकि हम जवाब तैयार करें। वो अली हैं कि यहाँ सवाल होता है वहाँ जवाब आता। वो इमाम मुबीन की शान है कि सवाल हुआ वहाँ जवाब आ गया, क्योंकि अल्लाह ने हर शय को जमा कर दिया है इमाम मुबीन में। तो वो इमाम मुबीन है। लेकिन यहाँ पर तो ज़ाहिर है कि मासूम से सवाल तो नहीं हो रहा। जब पूछा कि बताओ जब नबी मेराज पर गए तो आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे, वो सवाल करके चला गया। बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और सब सर जोड़ कर बैठे जैसे बैठते हैं और कहा भाई मसले का हल निकालो, कैसे जवाब दें कि आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? कहा कि हम ये कह देंगे कि आसमान फटने जुड़ने का मामला ही ख़त्म कर देंगे, कह देंगे नबी ने तो ख्वाब देखा था। अब ख्वाब के लिए आसमान के फटने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रूह परवाज़ करके गई थी तो रूह के परवाज़ करने के लिए किसी चीज़ के फटने और जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ में आया ये अक़ीदा कहाँ से आया है? जो इस बात के कायल है ये अक़ीदा कहाँ से आया? अक़ीदा आ गया कि जब वो आया और उसने कहा कि भाई जवाब दो, तो उसने कहा कि भाई जवाब यह है कि नबी को जिस्मानी महराज थोड़ी हुई थी, नबी ने तो ख्वाब देखा था या नबी की रूह परवाज़ करके गई थी। बस वो ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है, कहता है मान लिया ना कि जिस्मानी महराज नहीं हुई है, नबी महराज पे नहीं गए हैं। वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसने कहा जाने बचाने के लिए भी तो इस दर पे गए हो, आज अक़ीदा बचाने के लिए चले जाओ। वहाँ जाओ जहाँ मुश्किलें हल होती हैं, फ़र्जंद मुश्किल कुशा इमाम सादिक के दरवाज़े पे जाओ, इमाम मुबीन के दरवाज़े पे जाओ और इमाम से कहो या जाफ़र सादिक मदद। उस वक्त के हाकिम ने कहा इमाम से या इमाम मदद। आज हम या अली मदद कहते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं। उस वक्त भी कहा कि इमाम हमारी मदद कीजिए, आइए एक सवाल आया है उसका जवाब दे दें। तो अपने दादा की रविश पे अमल करते हुए कि जब भी मुश्किल आती थी तो फैसला करने के लिए अली आते थे, आज फर्जंदे अली वारिस अली बन के चले और दरबार में आए और कहा कि क्या बात है? कहा ये कोई सवाल पूछने वाला आ गया है, सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे दें। कहा क्या बात है? जो पूछना है पूछो। सलूनी जो पूछना है पूछो। ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे हैं, अली का खून बोल रहा है, पूछो जो पूछना चाहते हो। कहा कि पूछ लूं। अब वो देख रहा है कि जब मैंने इतने बड़े बड़े जय्यद उलमा लंबी दाढ़ियों वाले उनको ज़ेर कर दिया तो ये एक मेरा क्या कर लेगा। उसने एक मर्तबा तकब्बुर से सरशार होकर कहा कि पूछ लूं। कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा ये बताइए आपके नाना को मेराज हुई थी? कहाँ हुई थी? कहा ये बताइए। उसने कहा किस तरह से इनको मैं घेरूं इस बात पर? तो उसने फ़ौरन सवाल किया तो ये बताइए जिस्मानी हुई थी या रूहानी हुई थी? इमाम ने कहा हमारा अक़ीदा है हमारे नाना को जिस्मानी मेराज हुई थी, जिस्मानी मेराज हुई थी। कहा अब वो मुस्कुरा दिया। कहा आ गए उस बात पर जहाँ पर मैं लाना चाहता था कि जिस्मानी मेराज हुई थी। कहा अच्छा अगर आपका ये मानना है कि जिस्मानी मेराज हुई थी तो बताइए कि जब वो मेराज पर गए तो 7 आसमान है ना, इस तरह जैसे प्याज के छिलके होते हैं, ये मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहा हूं। अभी तो मैंने ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी को छेड़ा ही नहीं है, वरना दिल चाहता है जवानों के सामने 7 आसमान और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी पेश करूं, लेकिन अब मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ रिवायत को पूरा करना है। अज़ान मोहतरम, फौरन मौला ने कहा, जब पूछा ना उसने कि
एक आसमान दूसरे पे इस तरह है जैसे प्याज के छिलके होते हैं, 7 आसमान है। तो जब आपके जज मेराज पर गए तो आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? इमाम ने सोचा नहीं, कहा ये बता कभी कश्ती पे सफर किया है? कहां करता रहता हूं। कहा ये बता जब कश्ती पानी में चलती है तो आगे से पानी फटता कैसे है, पीछे से जुड़ता कैसे है? वो एक मर्तबा हैरान हो गया। अभी वो हैरान ही था, मौला ने दूसरा सवाल किया, कहा ये बता कभी घोड़े पे सफर किया है? कहा हां आका किया है। कहा ये बता जब घोड़ा दौड़ाता है तो आगे से हवा फटती कैसे है, पीछे से जुड़ती कैसे है? आज से 1000 साल पहले इमाम एरोडायनामिक्स बयान कर रहे थे। इमाम ने 2 मिसालें पेश की। मैं आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से मुखातिब होकर कह रहा हूं, जरा सोचिए इमाम ने फ्लूइड समझाया या नहीं समझाया? आज इंजीनियरिंग में फ्लूइड को कहा जाता है ये गैस भी इसमें शामिल है, लिक्विड भी इसमें शामिल है, यानी माया, ये पानी जो है ये भी इसमें शामिल है, गैस भी इसमें शामिल है, दोनों को मिला के फ्लूइड कहा जाता है। इमाम ने फकत पानी की मिसाल नहीं दी, हवा की भी मिसाल देकर फ्लूइड समझाया, पूरी एरोडायनेमिक समझा दी। समझने वाले नहीं थे, मौला समझाने के लिए तैयार थे। जैसे ही उसने ये जवाब सुना, कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं और ए जाफर सादिक आप ही जानशीन रसूल हैं। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप ही हकीकी वारिस रसूल हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमाम ना हो तो दुनिया को समझ में ना आए कि मखलूकात की तख्लीक का मकसद क्या है। नाज़रीन मोहतरम, एक मखलूक है मक्खी, मामूली सी मखलूक है, लेकिन इसके बड़े पैगामात हैं, रिवायात मौजूद हैं कि मंसूर दवानकी है और इमाम उसके दरबार में बैठे हैं और एक मक्खी है जो बार बार आती है, कभी उसके चेहरे पे बैठती है, कभी नाक पे बैठती है, कभी आंखों की तरफ आती है और वो बार बार झुंझुला के हटाता है। और एक मर्तबा तंग आकर उसने इमाम से कह दिया, फरजंदे रसूल आप कहते हैं अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद खल्क नहीं की है, ये बता दीजिए मक्खी को खल्क करने का मकसद क्या है? इमाम ना हो तो तख्लीक का मकसद समझ में ना आए। एक मक्खी समझ नहीं आ सकती अगर इमाम मुबीन ना हो। कहा मौला ये तो बताइए, आका ये तो बताइए, फरजंदे रसूल ये तो बताइए कि ये आप जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी चीज को बेकार खल्क नहीं किया, इस मक्खी की तख्लीक का मकसद क्या था? इमाम ने सोचा नहीं, जवाब दिया। कहा इसका भी मकसद है। कहा क्या मकसद है? कहा इसका मकसद है कि बड़े बड़े जाबिरों मुतकब्बिरों के गुरूर को चकनाचूर करे कि तुम्हारी औकात ये है, अपने को हाकिम कहते हो, एक मक्खी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मगर ये जो मक्खी है ना, ये तवल्ला भी करती है और तबर्रा भी करती है। तबर्रा करके दिखाया, तबर्रा है, ये मक्खी का तबर्रा है कि हाकिम को उसकी औकात याद दिला रही है। और यहां पर जब तवल्ला किया तो किस शान से किया, किस तरीके से किया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं नबी के लिए खाना निकालती थी, सालन के 2 प्याले, एक अपने लिए एक नबी के लिए, मेरे प्याले पे मक्खियां भिनभिनाती थी, नबी के प्याले के करीब भी मक्खी नहीं आती थी। यह बता दिया। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं नाने मोहतरम, ये है इमाम मुबीन की अज़मत। अगर दुनिया इमाम मुबीन की अज़मत को समझ जाती तो करबला ना होती। अगर इमाम मुबीन की अज़मत दुनिया समझ जाती तो इमाम सज्जाद के गले में तौक ना पड़ता, हाथों में हथकड़ियाँ ना पड़ती, पैरों में बेड़ियाँ ना पड़ती। अगर दुनिया इमाम मुबीन को समझ जाती तो जनाब ज़ैनब के सर से चादर ना उतरती, इमाम के खेमे ना जलते, जनाब सकीना को तमाचे ना लगते। अज़ान मोहतरम, शब अरबईन है ना, ये शब भी क़यामत की शब है। आज जब पुरसा पेश करें ना आप, तो दिल खोल के पुरसा पेश कीजिएगा, इसलिए कि आज वो बहन आ रही है, वो शब है कि जिसको रोने नहीं दिया गया था भाई पर, अब उसे रोने की इजाज़त मिली है। उस बहन को अब रोने की इजाज़त मिली है। शब अरबईन है, क़यामत की शब है। अब अगले साल ये शब आएगी, जो ज़िंदा रहेगा वो फिर
ये शब देखेगा, इसमें आज़ादारी करेगा, गिरिया करेगा, क़यामत की शब है। अज़ान मोहतरम, ये काफ़िला आप देखते हैं ना, आज भी अरबईन पे लोग ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। कोई खाना पेश कर रहा है, कोई पानी पेश कर रहा है, बहुत सारे मवाक़िब हैं। वहाँ पर मैं देख रहा था, एक बच्ची थी जो सबसे इंटरव्यू ले रही थी, और वहाँ पर जो सरबराह थे ना, जो मौक़िफ़ था उसका जो बड़ा था, सरबराह था, मुंतज़िम था, वो बच्ची जा के पूछ रही थी आपने ज़ायरीन की खिदमत के लिए क्या क्या किया है, तो वो जवाब दे रहा था। एक मौक़िफ़ पे वो खड़ी थी, उसने जब पूछा ना कि आपने खिदमत के लिए क्या क्या एहतमाम किया है, तो वो बताने लगा कि मैंने ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये सहूलत भी मौजूद है। उस बच्ची ने एक सवाल किया, ये बताइए जब हमारी बीबी यहाँ से गुजरी थी तो क्या तब भी ये सहूलियात मौजूद थी? वो जवाब ना दे सका, बस रोने लगा। ये सहूलतें कहाँ थी? कोई नहीं था। किस तरह बीबी ने सफ़र किया? ज़रा जब आप तसव्वुर करें कि जब करबला का आप सफ़र करें ना, तो जहन में जाहिर ना हो फ़कत, बल्कि बातिन भी हो, वो मंजर भी हो कि जनाब ज़ैनब ने किस तरह से भाई की कब्र का सफ़र किया है, कि जब बीबी को रिहाई मिली है। अज़ान मोहतरम, कि उस वक्त भी मौक़िफ़ थे, मगर उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद क्या था? रिवायात में है कि इब्ने ज़ियाद ने एहतमाम किया था कि जब बीबियों का यह असीर काफिला आए ना, तो वहां पर एहतमाम करना, वहां पर हमारी फौज के लिए एहतमाम करना, मेरी फौज को मुबारकबाद भी देना, उनको खाना भी देना, उनको पानी भी देना। किसी ने सवाल किया कि जब फौज को हम दे चुके, जो बच जाए वो हुसैन के बच्चों को दे दें, वो हुसैन के बच्चों को दे दें। तो फौरन कहा कि नहीं, हुसैन के बच्चों को ना देना, ना पानी देना, ना खाना देना, इतना भूखा रखना हुसैन के बच्चों को, इतना भूखा रखना कि जब ये शहर में दाखिल हों, इन पर जब सदके के खुरमे फेंके जाए तो ये भूख की शिद्दत से तड़प के वो खुरमे उठा के खा लें। मगर सलाम है अजमत सादात को, जुल्म हार गया मगर सादात को झुका नहीं सका। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, बीबियां असीर हैं, कटे हुए सर नोके नेजा पर हैं। इमाम हुसैन के सर ने मुख्तलिफ काम किए हैं। इमाम हुसैन के सर ने तिलावत की है कुरान की। इमाम हुसैन का सर जिस नेजे पे होता था, जब जनाबे सकीना कहीं गिरती थी, वो जमीन में गड़ जाता था, वो जमीन में गड़ जाता था। मगर एक और चीज है जो सर हुसैन से जाहिर हुई। क्या हुई? कि नेजों पे सर थे, उसमें एक ऐसा भी सर था जो मुसलमानों के नबी की शबी था, अली अकबर का सर था। लोग देखते थे कि इमाम हुसैन का सर जहां भी होता है नेज़े पर घूमता है और उस तरफ हो जाता है जिस तरफ अली अकबर का सर हो। अज़ान मोहतरम, जहां पर भी यह काफिला ठहराया जाता था, इमाम हुसैन का सर अली अकबर के सर के साथ रहता था। रिवायत में है कि एक मरतबा मुख्तलिफ संदूकों में यह सर बंद किए गए। एक मरतबा सर जिसमें इमाम हुसैन का था, क्योंकि यह सर पेश करके इनाम हासिल करना था। जब वो संदूक खोला गया, उसमें वो सर मौजूद नहीं था। सब परेशान हो गए कि यही तो वो सर था जिसे यजीद के सामने पेश करके हमें इनाम लेना था। ये सर कहां चला गया? एक मरतबा शिमर ने ताजियाना उठाया, इमाम सज्जाद के करीब आया, ताजियाना मारने शुरू किए। कहा बताओ बाप का सर कहां है? कहा ताजियाने ना मार, ये बता दे मेरे भैया अली अकबर का सर कहां है? जहां अली अकबर का सर होगा मेरे बाबा का सर वहीं होगा। जब वो संदूक खोला गया जिसमें अली अकबर का सर था, तो देखा इमाम हुसैन का सर वही है, बेटे के रुखसार से रुखसार मिलाए हुए। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, जनाब मुख्तार सखफी ने जब कातिलों को गिरफ्तार किया, ये जनाब मुख्तार का हम पर एहसान है कि वो उनसे पूछते थे बताओ तुमने करबला में क्या किया। तो फिर इस तरह से ये रिवायात हम तक पहुंची, किसने क्या क्या जुल्म किया। अज़ान मोहतरम, जब लोग लाए गए ना, कातिलान हुसैन लाए गए, हजरत मुख्तार ने एक सवाल किया, ये बताओ कि करबला में हुसैन को सबसे प्यारा कौन था?
हुसैन को सबसे प्यारा कौन था? कहा अमीर क्या पूछता है, अरे दरिया की मौजें गवाही देंगी, करबला का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि अली अकबर और अब्बास हुसैन को सबसे ज्यादा प्यारे थे। अरे एक बाप की छवि है, एक नाना की छवि है, क्यों ना प्यारे हो ये दोनों। कहा ये बताओ इनमें ज्यादा प्यारा कौन था? तो कहा इनमें ज्यादा प्यारा अली अकबर था, क्यों ना हो नाना की छवि है। अरे ये अली अकबर को देखकर नाना याद आते थे। कहा हुसैन को सबसे प्यारा अली अकबर था। कहा दलील क्या है? कहा दलील यह है कि हमने हुसैन को ऐसा करते हुए किसी के लिए नहीं देखा जैसा हुसैन ने रुखसत अली अकबर के वक्त किया। कहा मेरे मौला ने क्या किया? कहा जब अली अकबर को सवार किया ना और अली अकबर आगे बढ़ रहे थे, इमाम ने अमामे के पेच खोले, गिरेबान को चाक किया, आस्तीनों को चढ़ाया, दामन को फाड़ा, एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया और कहा बारे लहा गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में तेरे नबी की छवि है। जब हमें तेरे हबीब की याद आती थी हम इस जवान की जियारत करते थे। अब ये कौम हमसे ये जवान छीनने चली है। ये आलम था मेरे मौला का। ठोकर खा के जब गिरे हैं पलट के मौला ने देखा, तड़प के आका अली अकबर उतरे। का बाबा से तो इजाजत ले आया था। बाज़ उलमा बयान करते इमाम ने एक जुमला कहा, काश अली अकबर तुम्हारा तुम जैसा एक बेटा होता, वो मरने की इजाजत मांगता तो मैं तुमसे पूछता कि दिल पे क्या गुजरती है। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों मुझे मक्तल के चंद जुमले आपके सामने पेश करने हैं। हजरत अली अकबर ने जंग लड़ी है, जंग लड़ी है और ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मन भाग खड़े हुए, दूर चले गए हैं दुश्मन। अज़ान मोहतरम हैदर कर्रार की याद आ गई है दुश्मनों को, ऐसी जंग की है। और ऐसे में एक मर्तबा पलट कर आए और आकर कहते हैं बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इनको बता देता मैं किसका पोता हूं। ये क्यों कहा? जनाब अली अकबर जानते थे कि इम्तिहान का वक्त है, पानी मौजूद नहीं है। ये इसलिए कहा कि दुश्मन कान लगाए सुन रहे थे, कल को मौर्रिख ये न लिख दे कि हुसैन प्यासे नहीं थे। अरे जिसका बेटा ऐसी जंग करे प्यासा कैसे हो सकता है? जनाब अली अकबर ने बता दिया, तारीख में लिखवा दिया कि अली अकबर प्यासा जंग कर रहा है। यहां पर दुश्मन इकट्ठा हुए और कहा कि देखो अली अकबर को इस तरह से हम जेर नहीं कर सकते। कहा फिर क्या करें? तो एक मर्तबा एक लाइन कहता है कि ऐसा करते हैं कि मैं अली अकबर को इस तरह से बातों में लगाऊंगा कि मैं अली अकबर को दादे शुजाअत दूंगा, हाथ में नेजा ले लूंगा और एक शख्स कोई गुर्ज ले ले और हम आगे बढ़ेंगे, तुम पीछे से आना, मैं सामने से आऊंगा और अली अकबर को बातों में लगाऊंगा, दादे शुजाअत दूंगा, मैं भी हमला करूंगा, तुम भी हमला करना। जिसका हमला भी कामयाब हो गया हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। एक मर्तबा एक लाइन ने नौजरा लंबा नेजा उठाया, एक लाइन ने गुर्ज उठाया और ये जालिम आगे चला और एक मर्तबा हाथ लहरा लहरा के कहता है मरहबा शहजादे क्या जंग लड़ रहे हो, तुमने तो हैदर कर्रार की याद दिला दी। एक मर्तबा दाद देते हुए इसने अपने चेहरे पे एक मसनूई हैरत तारी की, खेमों की तरफ देखा। कहा ये क्या शहजादे, मैं तो तुम्हारी जंग से लुत्फानंदोज हो रहा था मगर वो देखो तुम्हारी फुफियां बाहर निकल आई। बस एक मर्तबा हाशमी गैरत जोश में आई। जनाब अली अकबर ने पीछे पलट कर देखा, यही वो लम्हा था। इसने पूरी कुव्वत से ये लंबा नेजा अली अकबर के सीने में उतारा, सीने में मार के इसने नेजा निकाला नहीं है बल्कि एक मर्तबा नेजे को घुमाना शुरू किया। अनी टूटी, कलेजे में अटकी, अभी अली अकबर संभले नहीं थे। एक जालिम आगे बढ़ा, गुर्ज का वार सर पर किया, अली अकबर का सर खुला। अली अकबर जानते थे बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला है, अरे बाप नहीं आ पाएगा, मैं अपने बाबा तक पहुंच जाऊं। उलमा बयान करते हैं हजरत अली अकबर के घोड़े की खासियत थी कि जब वो सवार को देखता था ना संभल नहीं पा रहा है और सवार अपने हाथों को उसकी गर्दन में डालता था, ये रास्ता याद रखता था, वापस वहीं ले जाता था जहां से लेकर चला। वैसे एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने चाहा मैं बाबा तक पहुंच जाऊं, अपने हाथों को रहवार की गर्दन में डाला लेकिन सर से बहता हुआ खून घोड़े की आंखों में गया, रास्ता भटका, बजाए इमाम हुसैन की तरफ ले जाने के नरक़े आदा में ले गया। वहां जालिम इकट्ठा हुए, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने नेजा उठाया, अली अकबर के टुकड़े करने लगे। अरे
इतने वार किए और इतना मजमा था कि आप सुनते हैं कि मेरा मौला घुटनियों चला है। ये फकत प्यास की वजह से नहीं था, ये फकत ज़ौफ की वजह से नहीं था, बल्कि वो कहते जाते थे ऐना अली, अली कहाँ हो, रास्ता नहीं मिलता था। दरमियान में फौजें हायल थी। मक्तल ख्वारज़मी में ये वजह भी मौजूद है कि इमाम हुसैन एक मर्तबा घुटनियों के बल चले, किसी तरह सवारियों के दरमियान से रास्ता बनाकर जवान की लाशें तक पहुंचे। अरे इस तरह से मेरा मौला लाशे अली अकबर तक आया। अब क्या देखा, खुदा किसी बाप को बेटे की ये हालत ना दिखाए। जनाबे अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे, जख्मों से चूर थे। एक मर्तबा मेरे मौला हजरत अली अकबर के करीब हुए, कहा बेटा क्या बात है, कहा बाबा एक जख्म है जो बहुत तकलीफ दे रहा है। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा देखना चाहा वो जख्म कहाँ है। कितने जख्म लगे थे कि वो जख्म छुपा हुआ था, वो नोके नेजा जो कलेजे में अटकी हुई थी। मेरे मौला ने एक मर्तबा हाथ जो लगाया, जख्म पे जब हाथ आया अली अकबर तड़पने लगे। कहा बेटा अली अकबर सब्र करना, कहा बाबा ये जख्म बहुत अजियत दे रहा है। मेरे मौला ने एक मर्तबा आस्तीनों को चढ़ाया, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी के फल में डाला। अब जो चाहा कि नोक को खींचे, जब खींचने लगे अली अकबर ने तड़पना शुरू किया। इमाम का दिल बंद होने लगा, इमाम का चेहरा झुक गया, पेशानी पे पसीना आया। जालिमों ने कहा फतह का ऐलान कर दो, हुसैन खत्म हो गए। अली अकबर का यह हाल ना देख सके, यह सुनकर इमाम ने अपने को संभाला। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, कहा खैबर शिकन बाबा जरा करबला आओ, अपने बेटे का खैबर फतह कराओ। एक मर्तबा या अली कहकर अनो के नेजा को खींचा। अली अकबर तड़पे, का बेटा जरा हौसला करना, पुपियों से वादा किया है तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। इमाम ने लाशे को उठाना चाहा, लेकिन इतने जख्मी थे अली अकबर, रिवायात में है कि इमाम जब उठाना चाहते थे लाशा बिखरने लगता था, बहुत मुश्किल हुई। अरे बूढ़ा बाप जवान का लाशा कभी उठाते थे कभी रखते थे। आपने देखा होगा कि अगर किसी घर में कोई मर जाए, मैयत उठने लगे, बच्चों को दूर कर दिया जाता है कि बच्चे ना देखे, मगर करबला में सब कुछ बदल गया। वो जो छोटे छोटे बच्चे दरे खैमा पे खड़े देख रहे थे, इमाम हुसैन ने एक मर्तबा आवाज दी, ए बच्चों आओ, अपने भैया का लाशा उठाने में हुसैन की मदद करो। छोटे छोटे बच्चे आए, किसी ने नन्हे नन्हे हाथों से कदमों को सहारा दिया, किसी ने हाथों को थामा, किसी ने सर को थामा। अरे इस शान से अल्लाह शाह अली अकबर खैमों में भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी
बर्बाद लाही क्या तबाही अब इसको आबाद कभी पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा याद आओगे भैया दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब पूछेंगे जो सब लोग के बाजू हुआ क्या ये नील है कैसा किसको निशान रसी के दिखलाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब घर जाके किसे कासम है नाबास अकबर से भी है आस अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब भैया तुम्हें घर जाके पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब सलाम खाक नशीनों पे सो
है। खुले सरों पसीरी की खाक आती है। सलाम उस पर जो ज़हमत कश सलासिल है। मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर होके जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर हैं। बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाज़िर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पर बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी। वो सीना जिस पाक सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादर बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पैगाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी।
कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, कोख भी उजड़ी। नहीं लाइनों में सा कोई खुदा हाफिज, दरिंद और ये बेवारसी खुदा हाफिज। सलाम मोहसिन सलाम, खस्ता तन लाशो सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशो, सलाम तुम पर रसूलों बुतूल के प्यारो, सलाम मेहरे इमामत के गिर्द सैयारो। बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मातम हुसैन।